Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Ritika Kholia and I am here with a series especially for 10th class as your board examinations are approaching. So in this series we will going to discuss all the important chapters and topics of your biology along with the PYQs. I hope you all know that in your examination or final board examination your biology consists of weightage of 30 marks, and in that biology 2 your chapter life processes consists of weightage of 7 to 8 marks. So I'm going to start with that chapter which consists of a lot of weightage in your board examinations. So chapter's name is life processes, and just let me know what do you understand by life processes. क्या हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें करते हैं उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है? क्या फ़ोन चलाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करना, क्या वो भी लाइफ प्रोसेसेस होता है? ऑब्वियसली नो, अ बिग नो. सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? सो इफ वी टॉक इन साइंटिफिक टर्म्स, इट्स एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करना या एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स in order to sustain themselves on this earth. Activities performed by living beings to sustain themselves or sustain their life on earth. So this is basically a definition of your life processes, and question should arise in your mind that why I have written here living beings and not human beings, because मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें करते हैं, बट आई हैव ऑल्सो रिटन अ टर्म हेयर अर्थ, प्लैनेट अर्थ. सो अर्थ पे क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स रहते हैं? नो, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन दिस अर्थ, एंड उसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हो सके हैं. सो लिविंग बींग्स बेसिकली जो होते हैं आपके, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. एंड आई होप you know the meaning of unicellular and multicellular. Uni means one and multi means multiple. So unicellular means organism which are made up of only one cell, and multicellular are the organism which are made up of multiple cells. ये one cell के बने होते हैं और ये जो आपके multicellular होते हैं ये multiple cells के बने हुए होते हैं. So there are 2 terminologies. I hope you all heard about them already, that is prokaryotes and eukaryotes. So बच्चों को मेजॉरिटी ये या उनको मेजरली ये कंफ्यूजन रहता है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं या उनको डिफरेंशिएट करते हैं. सो आई एम गोइंग टू क्लियर द कंफ्यूजन हेयर. जो यूनिसेलुलर होते हैं दे कैन बी यूकैरियोट्स and they can be prokaryotes. Fine. And your multicellular organisms are only eukaryotes. Fine. So what do you mean by eukaryotes and prokaryotes? Eukaryote and prokaryote का मतलब क्या होता है मैम? अब pro means your primitive and karyote means nuclear, membrane और न्यूक्लियस. ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जो आपका न्यूक्लियस होता है दैट इज एब्सेंट, और जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं उनमें आपका जो न्यूक्लियस रहता है वो प्रेजेंट रहता है. मार्क माय वर्ड्स, यूकैरियोट्स में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है. व्हाई आई एम टेलिंग इट हेयर ओनली बिकॉज जब हम अमीबा का हम डाइजेशन पढ़ते हैं या अमीबा हाउ इट टेक्स इट्स फूड, तो उस टाइम पे अमीबा आता है आपका इस चैप्टर में. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एंड इट मस्ट बी अ प्रोकैरियोट, बट नो, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर बट इट्स अ यूकैरियोट. तो एग्जाम्पल हेयर इज अमीबा इज योर यूकैरियोट बिकॉज इट कंसिस्ट अ न्यूक्लियस बट इट्स स्टिल अ unicellular organism. And in prokaryotes here example is your some bacterias and your yeast like organisms. ये prokaryotes होते हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. So this is all about unicellular, multicellular, eukaryotes and prokaryotes. I hope you understood the difference between unicellular, multicellular and eukaryotes and prokaryotes. So coming back to the life processes, how many types of life processes is there? So basically there is
4 types of life processes which we need to sustain ourselves on this earth. First one is your nutrition. Second one is your respiration. Third one is your transportation. And fourth one is your excretion. So इन चारों की चारों टर्म्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन हम इसे मिसअंडरस्टूड कर देते हैं फॉर ईटिंग अ फूड, बट नो, ओनली ईटिंग अ फूड इज नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज समथिंग लाइक खाना भी खा रहे हैं और उस खाने को यूटिलाइज भी कर रहे हैं. ईटिंग अ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट सेम फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन इज योर not inhaling and exhaling or not inhalation or exhalation of gases. Respiration is breakdown of glucose into energy, carbon dioxide and water. And transportation is अब वो जो आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो चुका है उस ग्लूकोज की एनर्जी को हर एक सेल तक पहुंचाना, that is the that occurs through the process of transportation and it occurs through the means of blood. और जब ये ब्लड आपके हर एक सेल हर एक टिश्यू तक आपके एनर्जी को डिलीवर कर देता है, उसके बाद आती है बारी आपकी एक्सक्रीशन की. दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन, जहाँ पे आपका वो जो ब्लड है वो फिल्टर होता है एंड योर एक्सक्रीशन अकर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर life processes overview. So now we will discuss nutrition in detail. As I told you earlier, nutrition is not just eating a food, it's eating your food and utilization of that food. I'm repeating it again and again. न्यूट्रिशन सिर्फ खाना खाना नहीं होता है, न्यूट्रिशन उस खाने को यूटिलाइज करना भी होता है. एंड यू हैव टू राइट दीज बोथ टर्म्स, ईटिंग या ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन इन योर बोर्ड्स ऑल्सो if this topic comes in your exam. And now further nutrition is divided into two categories, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Auto, I think all of you have heard a term that is automatic or autopilot. So हमने बहुत बार सुना होगा ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक चलती है, या ऑटोमेटिक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, या ऑटो पायलट है ये. ठीक है, तो ऑटो का मीन मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है ओन, खुद से करना. सो ऑटोट्रॉफ्स आर those organisms who prepares their own food. ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद ना बना के अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए दे डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए. अब ऑटोट्रॉफ्स में कौन आता है? इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, तो ऑटोट्रॉफ्स में आपके आ जाते हैं प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज लाइक सियानोबैक्टीरिया. एंड सियानोबैक्टीरिया को और कौन सा नाम दिया गया है? दैट इज योर ब्लू ग्रीन एल्गे. एंड हेटरोट्रॉफ्स में कौन आ जाता है एग्जाम्पल्स में? देयर आर ह्यूमन बींग्स. हम लोग क्या है, हम दूसरों पे डिपेंड होकर तो खा रहे हैं ना. हम जो आटा चावल दाल ये सब खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है? वो खेतों से आ रहा है. खेतों से कैसे आ रहा है? वो सब जो क्रॉप्स ग्रो हुए हैं वो कैसे ग्रो हुए हैं? खुद फोटोसिंथेसिस करके वो ग्रो हुए हैं एज ए प्रोड्यूसर्स, और हम उनको एज ए कंज्यूमर्स खा रहे हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ योर एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सब क्या हैं? ये आपके क्या किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं आपके हेटरोट्रॉफ्स में. अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपना खाना प्रोड्यूस जो प्रिपेयर करते हैं दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. और ऑटोट्रॉफ्स को एक और नाम दिया जाता है विच इज प्रोड्यूसर्स. इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है. एंड हेटरोट्रॉफ्स आर योर कंज्यूमर्स दैट वी विल स्टडी इन फूड चेन एंड फूड वेब टॉपिक. फाइन. सो आपके जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं? तो आई थिंक आपने एक टर्म सुना होगा दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उसके थ्रू ये अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस होता कैसे? इसमें 3 रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं प्लांट्स, विच इज CO2, वाटर एंड योर सनलाइट. फाइन. कि सनलाइट, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और आपके वाटर को यूज करके ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, दैट इज नोन एज photosynthesis. I hope everything is clear to you till now. Now autotrophic nutrition is also of 2 types further, that is your
photosynthetic autotrophic nutrition and your chemosynthetic autotrophic nutrition. अब देखो इसके नाम में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक. फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब लाइट, एंड योर कीमो मीन्स केमिकल्स. वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, दे आर नोन एज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक autotrophs, or the nutrition they perform is chemosynthetic autotrophic nutrition, and photosynthetic nutrition is performed by the organisms who prepare their food by using light, which I described earlier. They are plants. And the most known example of chemosynthetic autotrophic nutrition is, it is performed by a bacteria known as purple sulfur बैक्टीरिया. ये जो बैक्टीरिया है ये केमिकल्स को यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करता है, बट खुद करता है. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड इन ऑटोट्रॉफ्स. एंड फोटोसिंथेटिक में लाइट यूज करके करते हैं. इसमें आपके एग्जांपल आ जाते हैं प्लांट्स. फाइन. दिस इज टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक. वी विल डिस्कस photosynthesis in detail, so we will discuss it here. What is photosynthesis? and star mark कर लीजिए क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में या एग्जामिनेशंस में आ चुका है बार बार, और पूछा क्या जाता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो वी विल डिस्कस कि हाउ फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स. तो अपना खाना कैसे बनाते हैं. सो मैंने पहले आपको बताया था कि 3 रॉ मटेरियल्स यूज करके बनाते हैं. वो रॉ मटेरियल्स का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. इन तीनों रॉ मटेरियल्स को यूज करके प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. और देयर इज वन रिएक्शन विच अकर्स इन प्लांट, जिसकी वजह से वो खाना बन पाता है. एंड द रिएक्शन हेयर इज, और ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, यू कैन सी इट देयर ऑल्सो. सी रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल योर वाटर. अब ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इन सब्सटेंस विच इज नोन एज योर कार्बोहाइड्रेट. फाइन. एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, ठीक है, ये जो आपका 6 कार्बन आपका जो ये कार्बोहाइड्रेट है, दिस कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ग्लूकोज. फाइन. सो होता क्या है, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और आपके वाटर्स के ऊपर सनलाइट आती है और ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट के अंदर एक प्रेजेंट पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कन्वर्ट कर देता है एक 6 कार्बन कंपाउंड में, जिसका नाम है ग्लूकोज. ठीक है. सो हियर आई एम राइटिंग द मैकेनिज्म, 3 स्टेप मैकेनिज्म. 3 स्टेप्स में आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म होता है. सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. सबसे पहले आपका क्या होगा, आपकी सनलाइट एब्जॉर्ब होगी. और आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा कौन. अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोप्लास्ट. और उस क्लोरोप्लास्ट में भी उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, अ पिगमेंट नेम्ड क्लोरोफिल. ये जो पिगमेंट होता है, इसी की वजह से आपके जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है. फाइन. एंड सेकेंड स्टेप, और उसके बाद ये जब आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है सनलाइट, उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आपकी जो आपकी लाइट एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. आपका कन्वर्जन हो जाएगा, क्या लाइट एनर्जी, आपकी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू केमिकल एनर्जी. फाइन. सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपके फर्स्ट स्टेप में आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था एक पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल. उसके बाद आपकी कन्वर्जन हो रही है इस लाइट एनर्जी की इनटू केमिकल एनर्जी, और आपका जो वाटर है वो किसमें स्प्लिट हो जाएगा, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. एंड देन थर्ड एंड द लास्ट स्टेप विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑल्सो, कि जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू
6 कार्बन मॉलिक्यूल और 6 कार्बन कंपाउंड, सॉरी 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो 6 कार्बन कंपाउंड क्या होगा आपका, विच इज नोन एज ग्लूकोज. फाइन. So see what is happening here. I will show it to you in the reaction. What is happening here? सबसे पहले absorption हो रही है sunlight की. Sunlight is getting absorbed in the pigment known as chlorophyll. Chlorophyll में आपकी sunlight जो है वो आपकी absorb हो रही है. ठीक है. Second is आपकी अब ये जो light energy है that is converting into chemical energy. And third step is आपका जो ये carbon dioxide है that is getting reduced into your ग्लूकोज. एंड ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज एक आपका 6 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है. तो ये आपका फूड है. अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, पॉइंट टू बी नोटेड. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है विच आई वांट टू टेल यू दैट आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो रिजर्व होता है ग्लूकोज का, या एक्स्ट्रा फूड जो आपके प्लांट्स में बनता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है आपके प्लांट्स में. सो ग्लूकोज जो होता है इज स्टोर्ड इन form of प्लांट्स में. वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप क्या बताएंगे, वो प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एंड सिमिलर क्वेश्चन अराइजेस, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोज है वो ह्यूमंस में किस फॉर्म में स्टोर होता है. तो ह्यूमंस में आपका जो ग्लूकोज होता है, क्योंकि हमारा फूड भी तो एट दी एंड ग्लूकोज ही बनता है ना, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है. एंड फर्दर वी विल टॉक अबाउट दैट इन रेस्पिरेशन. बट नाउ फॉर नाउ यू शुड नो दैट जो आपका ग्लूकोज ह्यूमन बींग्स में स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपका जो फोटोसिंथेसिस है पर्टिकुलरली वो परफॉर्म कहाँ होता है. मतलब हमने तो पढ़ा है कि मैम जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट लीफ में होता है, हमें ये भी पता है. बट लीफ में भी, पूरे लीफ में नहीं होता है. लीफ में एक सेल प्रेजेंट, एक सेल होता है, एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट उन सेल का नाम क्या होता है, उन सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स. और वो जो मीजोफिल सेल्स होते हैं पर्टिकुलरली वही क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जब का क्लोरोप्लास्ट होता है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होता है या बल्क में प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई इट अकर ओनली इन योर मीजोफिल सेल्स. ओके फाइन. सो नेक्स्ट इज योर स्टोमेटा. एक आपके टॉपिक है एनसीईआरटी में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और गार्ड सेल्स. तो स्टोमेटा है क्या बेसिकली, क्यों इंपॉर्टेंट है ये. कंसीडर दिस इज अ लीफ, कंसीडर माई हैंड एज अ लीफ. ठीक है. तो अब इस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे. इन पोर्स के थ्रू आपकी गैसेस का एक्सचेंज होगा, ट्रांसपिरेशन होगा. ठीक है. तो जो इसकी बॉडीली प्रोसेसेस हैं दैट अकर्स थ्रू पोर्स. सो स्टोमेटा क्या है, ये टाइनी पोर्स होते हैं. दे आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ. आपका जो पत्ता होता है उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है. आपको फंक्शन पूछ लिया जाता है कि क्यों जरूरी है स्टोमेटा होना, क्या फंक्शन इसके. तो नंबर 1 इज योर ट्रांसपीरेशन. डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन. एंड सेकंड इज योर गैसियस एक्सचेंज. आपके जो गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट टू अकर्स थ्रू योर स्टोमेटा और दीज टाइनी पोर्स. तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जो सुबह सुबह आपके पत्तों पे पानी निकला हुआ था, हम कहते हैं कि ओस पड़ी है. दैट इज योर एक्सेस ऑफ वाटर रिमूवल फ्रॉम योर प्लांट. ठीक है. तो ट्रांसपिरेशन इज योर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट. बट कौन सा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर. अब आप बोलोगे कि वाटर कहाँ से आया प्लांट में, आप भूल गए शायद. जो फोटोसिंथेसिस में हमने रिएक्शन किया था उसमें आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या बना था. 1 प्रोडक्ट इज योर ग्लूकोज, 1 इज योर ऑक्सीजन एंड 1 इज योर वाटर. तो वो जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है वो किस फॉर्म में बाहर आता है, बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर ट्रांसपिरेशन. एंड गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन प्लांट एक्सहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, इनहेल करता है. कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, ऑक्सीजन अमाउंट हमारा इन्वायरमेंट में इंक्रीज होगा. ठीक है. दैट्स वाई हम उसको प्रमोट करते हैं, सेव ट्रीज, डोंट कट ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज. सो फाइन. ये आपके इसके स्टोमेटा के जो आपके फंक्शन है, 2 फंक्शंस हैं.
उसके बाद गार्ड सेल्स, कम ऑन द गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स क्या करते हैं, क्या रोल है इनका, ये ऐसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके लीफ में प्रेजेंट होते हैं ऐसे. फाइन. सो ये कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं हमें ये पढ़ना है. तो होता क्या है, जब आपके, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, तो क्या होता है, ऐसे आपके ये गार्ड सेल्स होते हैं, दीज आर योर गार्ड सेल्स. जैसे आपका वाटर, जब आपका वाटर बाहर निकलता है तो ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं. और जब आपका वाटर इनके अंदर भर जाता है, मतलब लाइक वाटर इनके अंदर होता है जब, तो ये स्वेल हो जाते हैं. लाइक ये हैं गार्ड सेल्स. फाइन. दिस इज योर स्टोमेटल पोर. ये आपका स्टोमेटल पोर है. यहाँ आपके विक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सिमिलरली इन बोथ द केसेस. फाइन. सो क्या होता है कि जब आपका जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग आपका जो वाटर है, जब वो वाटर आपके लीफ में ही तो वो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो जब वो अंदर जाएगा, जब वो वाटर एंटर करेगा लीव में, तो आपका जो लीव के अंदर आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, या आपके जो पोर्स होते हैं वो आपके खुल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं. और ये किसके थ्रू खुलते हैं, सेल्स के थ्रू, जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. ठीक है. और जैसे ये पानी आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर आता है, एक आपकी प्लांट से एक्सक्रीट हो जाता है जब ये पानी, तब ये जो आपके सेल्स होते हैं क्लोज हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर गार्ड सेल्स. एंड नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट इज योर, कि ये तो हमने पढ़ लिया, ये आपके प्लेन्स में जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे आपका, ये तो हमने क्या पढ़ा कि आपके जो प्लेन्स में प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है दिन में और आराम से हो जाता है. बट व्हाट अबाउट डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट्स में तो ना उनको पानी मिलता है दिन में, ना उनको, मतलब इतना ऑलरेडी वहाँ पे इतना ड्राइनेस होता है. अगर वो दिन में अपने पोर्स को खोल के बैठ जाएंगे या दिन में ही अपने वो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, तो उनका तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो हाउ दे परफॉर्म, पानी नहीं होता ना वहाँ पे, तो व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है, जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स को हम और क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज जीरोफाइट्स. तो ये जो जीरोफाइट्स होते हैं, जेरोफाइट्स या जीरोफाइट्स, इनमें जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होती है, तो इनमें रिवर्स होता है. दिन में जैसे आपके स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं आपके प्लेन एरियाज के, वो खुले हुए रहते हैं और रात को बंद होते हैं. बट इनका जो स्टोमेटा होता है वो रात को ओपन होता है, नाइट में वो ओपन रहते हैं, और डे में जो आपका स्टोमेटा होता है वो क्लोज रहता है. सो व्हाट हैपन, जब रात में आपका स्टोमेटा ओपन रहता है जेरोफाइट्स में, तो व्हाट हैपन्स इज, वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता ही है ना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिल कर लेते हैं. ठीक है. उस कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लेते हैं. प्लस वाटर भी सॉइल में होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर, यहाँ पे एक आपका, ये आपका डेजर्ट प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस. फाइन. तो अब ये कैक्टस इसने क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसने रात को ले लिया, इस टाइम पे इसका स्टोमेटा ओपन था. ठीक है. इसने यहाँ पे अभी एक ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दिया. यहाँ पे इन्होंने एक क्या किया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दिया, और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड. ये मैलिक एसिड ये रात को बना के रख लेता है, जो आपका डेजर्ट प्लांट होता है कोई भी, और जैसे ही सनलाइट आती है, जैसे ही दिन में सनलाइट आई, इस मैलिक एसिड को ये जो आपका इंटरमीडिएट है दैट कन्वर्ट्स इनटू योर ग्लूकोज. सो व्हाट हैपेंस इज, सी, रात को स्टोमेटा आपका ओपन होता है डेजर्ट प्लांट्स में, जो जिनके हम जेरोफाइट्स भी बोलते हैं. तो वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके रात को ही एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाकर रख लेते हैं, जिससे वो दिन होते ही जैसे ही सनलाइट आती है उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लूकोज. एंड दैट्स हाउ योर फोटोसिंथेसिस occurs in your desert plant. Now we will discuss about heterotrophic nutrition and its types. So I already told you heterotrophic nutrition is the nutrition in which organisms
depend on others. They are dependent on others for their food requirements. Fine. So अब ये कितने कैटेगरीज में आगे फर्दर डिवाइड होता है. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स फर्दर. और वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज योर होलोजोइक, सेकेंड इज योर सेप्रोट्रॉफिक, एंड थर्ड वन इज योर पैरासिटिक. So what is your holozoic, saprotrophic and parasitic? So holozoic organisms वैसे organisms होते हैं जो अपना खाना ingest करते हैं और उस खाने को अपनी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं. मतलब समझ रहे हैं, अपना खाना खाया और उस खाने को अंदर ही डाइजेस्ट किया. इंजेस्टिंग सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट करके और उस सॉलिड मटेरियल को अंदर ही डाइजेस्ट करना. इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड इनसाइड द बॉडी. अपनी बॉडी के अंदर ही उस खाने को इंजेस्ट किया और उसको अंदर ही डाइजेस्ट किया, मीन्स उसको अंदर ही ब्रेक डाउन किया. तो इसके एग्जाम्पल्स कौन हैं? हम लोग भी कैसे खाते हैं? हम लोग अपना खाना जो है अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं. तो दैट मीन्स होलोजोइक में कौन आते हैं आपके? ह्यूमन बीइंग्स. और अगर मैं इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दूं तो ऑल हर्बीवोर, योर कार्निवोर, योर ओमनीवोर. ये तीनों कैटेगरीज जो होती हैं ये आपकी होलोजोइक में आती हैं. खाने को, सॉलिड मटेरियल को ये स्वेलो करती हैं और उसको डाइजेस्ट भी अपनी बॉडी के अंदर ही करती हैं. एंड नाउ सेकंड इज योर सेप्रोट्रॉफिक. व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक? सेप्रोट्रॉफिक वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना जो है अपने खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं, फिर अपनी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, दे अपने खाने को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं. ब्रेक डाउन देयर फूड आउटसाइड द बॉडी. अपने खाने को आउटसाइड देयर बॉडी वो अपने खाने को ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन. उससे फिर न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्ब करते हैं. इसके एग्जाम्पल आपके होते हैं यीस्ट, ब्रेड मोल्ड और आपके मशरूम्स. ये क्या करते हैं? आपके खाने को, सॉरी आपके खाने को नहीं, अपने खाने को ये ब्रेक डाउन करते हैं बाहर. मतलब अपना, मानो मैंने एक खाना लिया, ठीक है, मैंने खाने को बाहर ही तोड़ा, ठीक है, उसको मैंने कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना लिया, उसको फिर मैंने उसका न्यूट्रिशन जो है अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया. ये होते हैं सेप्रोट्रॉफिक. एंड द लास्ट योर टाइप इज ऑफ हेटरोट्रॉफिक इज पैरासिटिक. आपने सुना होगा पैरासाइट्स, कि पैरासाइट्स क्या होते हैं. पैरासाइट अपने, अगर नहीं वैसे सुना तो वैसे अपने नाम सुना होगा पैरासाइट्स. ठीक है, एक मूवी भी है मे बी हॉलीवुड में, पैरासाइट. ठीक है, तो पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने को, मतलब वो किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. ऑब्वियसली हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं तो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होंगे. क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट. किसी होस्ट, एक इंसान को या किसी जानवर को अपना होस्ट बना लेंगे, उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे, बट विदाउट किलिंग देम. उनको मारेंगे नहीं, उनको बिना मारे अपना न्यूट्रिशन उनसे एब्जॉर्ब करेंगे. सबसे रिलेटेबल एग्जांपल आपका पैरासिटिक का अगर है तो वो जुएं हैं. क्या करती हैं जुएं? अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, दे गेट इनसाइड योर हेयर और उसके बाद वो आपको होस्ट बना के आपके हेड से ब्लड को एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करती हैं. आपके ब्लड पे वो फीड करती हैं, आपकी बॉडी में ही रहती हैं और आपको एज अ होस्ट यूज़ करती हैं. तो लाइस, जिन्हें हम हिंदी में जुएं कहते हैं, टिक्स, लीच भी आपके ब्लड पे फीड करती है, टेप वर्म्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं. अगर आप अफ्रीका वगैरह की बात करो तो वहाँ पे ड्यू टू अनहाइजीन या वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते तो टेप वर्म्स गेट इनसाइड देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स. फाइन. टेप वर्म्स. देन इज योर कस्क्यूटा. ये एक एक्सेप्शन है, ये एनिमल नहीं है, दिस इज अ प्लांट और ये पैरासिटिक प्लांट है. और ये सिर्फ एक सिंगल एक्सेप्शन है प्लांट की जो अपना खाना खुद नहीं बनाती. और इसका दूसरा नाम है अमरबेल. इसे अमरबेल बोला जाता है. सिर्फ दिस इज द प्लांट जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाता है. आपको ऐसे नहीं पूछेंगे बोर्ड्स में कि हेटरोट्रॉफ बताओ, उसमें पैरासिटिक एक्सप्लेन कर दो. पूछेंगे
Name the plant which is a heterotroph. So there is only one exception, which is Cuscuta, and it is also known as Amarvel. So this is all about your autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, and overview of nutrition. In next class, we will read about how do organisms get their food. Like we will read about amoeba, how amoeba get its nutrition, and how human beings get their nutrition. Majorly, we will discuss about digestive system of human beings and nutrition of amoeba. Thank you so much. If you have any doubts and queries, do let me know in the comments.